Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you are following us on Instagram. How to prepare for CLAT 2022 from zero by self-study. In this video, we're going to discuss the syllabus. We are going to discuss the plan that you should, adopt, the strategy. We are going to discuss what should be your schedule. We are going to discuss how to manage time. We are going to discuss a lot of things, right? Chaliye, let's get into this video. Is it the right time? Is it the right time? Some of you say that should we wait or should we start? Number one question is this. Some of you think that you've missed the train. Some of you think that you have missed the train. No, you have not missed the train. And yes, this is the right time. I'm not saying that after this you won't be able to prepare for CLAT. You will be able to, but we're going to see that why this is the perfect time. Yes, I'm using the word perfect. Chaliye. Now, let's see how many months do we have. We have around about, like, say 13 to 14 months, right? 13 to 14 months. Yes, March, only 10 days are left, around about 10 days. Then we have April, May, June, July, August. Now I'm going to tell you, and we are going to see that what happens, because I have been with so many students. I've talked to them, and when I talk to them, I've got to know so much that I can tell you that what you are going to go through, right? Now, I'm going to tell you that this period of yours, March, April, May, and somewhere till June, July, even somewhere till June only, you will, these 3 to 4 months, are your tension-free months. Tension-free months. Why? Why? Because from here, if you're August, September, October, your burden of boards will start. Burden of boards is going to start, right? हम ये तो क्रॉस आउट ही कर दो. ये जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, March, if exams, your boards take place on time, which we think that will, your January, February, April, you can say boards and pre-boards, because January may your pre-boards take place and then your boards, right? So these months you cannot think of giving a lot of time to CLAT, right? Clarity आ रही है. याद है वो 10th का time? Do you remember what happened in 10th when boards were near? As and when the boards were coming near, the burden was increasing. Why? School tests were increasing, weekly test है, ये exam है, वो exam है, कितना कुछ हो रहा था, practicals हैं, ये सब कुछ है, हो रहा था. अब आफ्टर बोर्ड्स हमें 15 to 1 month मिलता है, ठीक है ना? 15 days to 1 month हमें मिलता है, राइट? तो यहाँ पे तो हम सिर्फ रिविजन कर सकते हैं. अगर अच्छी तैयारी करी हुई है तो हम यहाँ पे रिविजन का सोच सकते हैं, वो भी बहुत क्विक वाली रिविजन, राइट? क्लियर है ये वाला चीज? तो मैं क्यों कह रही हूँ कि मार्च अप्रैल मई में चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि 3 to 4 months टेंशन फ्री मंथ्स है हमारे, टेंशन फ्री मंथ्स है. तो टेंशन फ्री मंथ्स का बेनिफिट क्या है वो मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे. देखिए यहाँ पे आपके 99% चांसेस, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, बन जाते हैं. बिकॉज नो बर्डन, टेंशन फ्री, इजी हो जाता है, ठीक है ना? कि आप अपना फुल फोकस कर सकते हो, ठीक है ना? और बेस्ट पार्ट, अगर यहाँ से तैयारी स्टार्ट करोगे तो बोर्ड्स और क्लैट दोनों में फ्लरिश करोगे, समझ रहे हो? अगर अभी तैयारी कर लोगे, देखो अभी बोर्ड्स दूर हैं थोड़े, ठीक है ना? तो अभी हमें टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री है, ठीक है? 99% चांसेस है, अगर हम सही तरीके से करें तो हम दोनों में फ्लरिश करेंगे, बोर्ड्स में भी, क्लैट में भी, ठीक है ना? बट जैसे ही अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आएगा, नो डाउट मैंने वीडियोस करी हुई हैं, 2020 में भी बोला था कि येस यू कैन क्लियर क्लैट अगर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे. बट उनको क्या कहा था? उनको कहा था कि चूज बिटवीन बोर्ड्स एंड क्लैट. उनको कहा कि अपने पेरेंट्स से बात करो कि मेरा तो क्लैट में इंटरेस्ट है, बोर्ड्स में अगर मेरे 50 to 60% आते हैं, आर यू ओके विद दैट? बिकॉज आई नो स्टूडेंट्स आर नॉट ओके विद दैट, बिकॉज हमारी कंट्री में विद बोर्ड्स अ लॉट ऑफ सेंटिमेंट्स आर अटैच्ड. बहुत इज्जत अटैच्ड है बोर्ड्स के साथ. इफ यू स्कोर लेस, people think
दैट यू आर यूजलेस, राइट। और बहुत सारे पेरेंट्स अग्री नहीं करते हैं, वो कहते हैं क्लैट को छोड़ो, तुम्हारे बोर्ड्स में 80+ 90+ आने चाहिए, राइट। ये वाला देख लेते हैं, जनवरी फरवरी मार्च में तो हिडन ट्राई है कि अगर बाय चांस लकीली हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं, ठीक है ना, समझ रहे हो। यहाँ पे ना तो हमें बोर्ड्स और क्लैट के बीच में चूज करना पड़ रहा है, ना तो हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड है, हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हम टेंशन फ्री प्रिपरेशन कर सकते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो जो मैं बताना चाहती हूँ, समझ रहे हो या नहीं। ये जो टाइम आपका चल रहा है ये बेस्ट टाइम है, प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो, अच्छे से स्टार्ट कर दो, टेंशन फ्री विद फुल फोकस, टेंशन फ्री विद फुल फोकस स्टार्ट कर दो। व्हाट टू डू फ्रॉम अप्रैल टिल जून जुलाई। अप्रैल, फिर आप कह रहे हो कि ठीक है दी, आपका कहना मान लिया, अप्रैल से लेके जून जुलाई तक, यस दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम। व्हाट वी शुड डू, व्हाट वी शुड डू, यू शुड complete the syllabus. This should be your aim, this should be your aim, completing the syllabus. This should be your aim, reading and understanding the topics, making short notes in the books if required, book में ही short notes बना लो, ठीक है ना, revising and taking tests, weekday and weekend formula। देखो हमें आपको एक चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, ठीक है ना, लर्निंग का पार्ट इजी करना है तो हर चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, मोस्ट ऑफ द चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और मार्क क्यों करना पड़ेगा, मार्क क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमने रिवाइज करना है, हमने रिवाइज करना है। और अगर रिवाइज हम कब कर पाएंगे, अगर मार्क क्या होगा, और हमारे शॉर्ट नोट्स वहीं पे बुक में ही बना लो, बुक में ही बना लो। और वीकडे वीकेंड फॉर्मूला क्या है, हमने ये नहीं करना कि हम वीकडे में न्यू टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है पढ़ो, बट हमने वीकेंड पे रिवाइज भी करना है, उस चीज का खुद का टेस्ट भी लेना है, चाहे रिपीटेड क्वेश्चंस ही सॉल्व कर लो, बट हमने देखना है क्या हमसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। टेस्ट क्यों लेना है, टेस्ट क्यों लेना है, क्योंकि नंबर 1 एक्यूरेसी, नंबर 1 एक्यूरेसी करेक्ट, ठीक है ना। नंबर 2 टेस्ट लेना है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्या हमारा सही हुआ है या नहीं। ये नहीं होना चाहिए कि नए टॉपिक्स करते रहो पुराने भूलते रहो, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना है। तो यहाँ पे कंप्लीट द सिलेबस, एम क्या होना चाहिए, टू कंप्लीट द सिलेबस, राइट। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैसे क्या करना है, बहुत ही ईजी है यार, बहुत ईजी है। Do this please, do this please. Number 1 is previous year question papers. Have a look at previous year question paper, that is the question paper of 2020, because हमारा 2020 में पैटर्न चेंज हुआ था, फर्स्ट एग्जाम हुआ चेंज जो पैटर्न में हुआ था उसके साथ। तो वी नीड टू हैव अ लुक एट 2020 का क्वेश्चन पेपर प्लस द सैम्पल पेपर्स। आई लीव द लिंक टू इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब भी एग्जाम देते हैं, हम हमारे बोर्ड एग्जाम्स हुए 10th के अंदर, तो हमें कितनी बार सॉल्व करवाया गया क्वेश्चन पेपर, है ना, सो दैट when we actually sit in a board exam we do not get shocked, we do not get stressed। क्यों, कि हम स्ट्रेस में ना जाए, हम पैनिक ना हो, राइट। इसीलिए हमें सिखाया गया ना कैसे सॉल्व करना है, कैसे। बट जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बारी आती है, हम क्यों नहीं देखते कि कैसा सा पेपर आया था। You should have a look for sure, right? And you need to see what kind of things you need to prepare for। जब आप पैटर्न देखोगे, आप देखोगे पैसेजेस है, आप देखोगे पैसेजेस हैं फिर क्वेश्चंस हैं, पैसेजेस हैं फिर क्वेश्चंस हैं। आपको अरे इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर ये कैसे हो पाएगा, सब हो जाएगा। इट इज़ फॉर एवरीवन आउट देयर, कोई स्पेशली नहीं है कि आपके लिए वो एक स्पेशल क्वेश्चन पेपर डाल रहे हैं, इट इज़ फॉर एवरीवन आउट देयर। नंबर 1। Number 2, you have enough time to prepare, and I'm going to tell you how to prepare also. It is not at all difficult. It is just in our head we have said कि difficult है। अगर डिफिकल्ट है भी है, अगर डर लगता भी है, फियर आता है कि कैसे होगा, हाउ, तो फियर आता है तो उसको मोटिवेशन में के तौर पे यूज करो, एंड फियर को यूज करो सॉल्यूशंस निकालने में,
सॉल्यूशंस निकालने में कि यार मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, मैं कैसे इसका जो प्रॉब्लम है मुझे वो सॉल्व कर सकती हूँ, वो निकालने में। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू, राइट। सो सीइंग द पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको देखो, डरो नहीं, उसमें से निकालो कि अच्छा मुझे ये करना है तो ऐसे 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 करना पड़ेगा, राइट। कट ऑफ, हाउ मेनी मार्क्स यू वांट टू स्कोर, हाउ मेनी मार्क्स यू वांट टू स्कोर, यू नो कितने टॉपर के आए थे, ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता है 2020 में सिर्फ 100 प्लस जो मार्क्स थे वो सिर्फ 19 कैंडिडेट्स के आए थे। 19 कैंडिडेट्स इतना स्कोर कर पाए थे, और जिन बच्चों के 80 to 100 के बीच में मार्क्स थे उनको NLU मिल गया था, राइट। ये पता होना बहुत ज़रूरी है। 2020 की लिस्ट देखो, 2019 की गूगल करो और देखो कि यार देखो हर किसी का अपना एम है। कोई NLSIU बैंगलोर में जाना चाहता है, कोई कहता है यार मुझे कोई भी NLU मिल जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो तुम्हें पता होना चाहिए कितने मार्क्स चाहिए। मुझे पता है मेजॉरिटी को नहीं पता होता। क्यों नहीं पता यार, क्यों नहीं पता, ये पता होना चाहिए, उसी हिसाब से तो तैयारी करोगे तुम अपनी, राइट। नेक्स्ट इज कलेक्ट मार्क्स। कलेक्ट मार्क्स से मतलब है तुमने सेट कर लिया यहाँ पे तुम्हारा स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 क्या है यहाँ पे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 क्या है, एम क्या है, ये नोटबुक में लिख लो, ये नोटबुक में लिख लो कि मेरा इतने का एम है, ठीक है ना, और उसमें +5 ऐड कर देना, ठीक है ना, क्योंकि कट ऑफ ऊपर नीचे होती रहती है और हम ऊपर वाली साइड जाएं तो बेटर है। कलेक्ट मार्क्स, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स फर्स्ट एंड देन वीक टॉपिक्स। देखो अगर तुम कह रहे हो कि ठीक है यार मेरे 95 to 100 के बीच में आने ही आने चाहिए, या तुम एम करो कि नहीं यार मुझे 100+ चाहिए, मुझे तो पक्की सीट चाहिए, 100+ चाहिए, ठीक है ना, तो तुम क्या करोगे, अच्छा ठीक है ये सब्जेक्ट इतने मार्क्स का, ये इतने का, ये इतने का, मेरा ये वीक है, मेरा ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग वाले तो पहले पक्के कर लो। बच्चे पता है क्या करते हैं, स्टूडेंट्स, व्हेन आई टॉक टू देम, मुझे इतना दुख होता है, वो 1 साल बर्बाद कर देते हैं। वाई? वो पता है क्या करते हैं, one student came up to me and said my maths was very weak, I took a tuition for entire year, now my maths is the only strong subject and all other subjects are weak. क्यों भाई, you should focus on the your strength first। पहले डिसाइड कर लो तुम्हें क्या क्या लग रहा है कि यार इजी है, ये हो सकता है। स्ट्रेंथ मैं बताऊंगी तुम्हें इस वीडियो में। स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को कर कर खत्म करो, उसके बाद डिफिकल्ट देखेंगे। क्रिटिकल रीजनिंग डिफिकल्ट लगते कोई बात नहीं, पहले इंग्लिश, मैथ्स, DI, तुम्हारा लीगल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, ये तो कवर करो, राइट। हम क्या करते हैं, हम वीक को स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में जिसको स्ट्रॉन्ग कर सकते थे उसको भी छोड़ देते हैं। दैट इज वॉट यू डू। राइट बुक्स गाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट नो कि तुम कोई भी बुक उठा के क्यों पढ़ने लग जाते हो यार, ऐसा नहीं होता है। लुक, तुम लोगों के पास टाइम कम है ना, कम, क्योंकि 12th में बोर्ड्स भी देने हैं, क्लास का एग्जाम भी देना है, और तुम मोटी मोटी बुक्स लेकर आ रहे हो यार। तुम्हें बुक वो चूज करनी है जिससे तुम्हारा काम बन जाए, right? You have to pick up a book wherein which you read that book, your syllabus is covered, and that's it. You need not go for books come up to me and they tell दी हम M लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, हम DD वासु पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। नहीं ज़रूरत यार, नहीं ज़रूरत, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वाइजली चूज बुक्स। You can take my help. You can message me on Instagram. I'm there by the name at I am Logri, or you can even leave a comment down below. I would love to answer such questions. But please don't buy books ऐसे ही। Step 3. Now step 1 and 2 we are going to discuss later on. But step 3 जो हमारा है, पहले subject wise planning समझ लो। Subject wise planning समझ लो कि कैसे करनी है। सबसे पहले आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ऑब्वियसली हर किसी को बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि हमें न्यूज़पेपर नामक चीज़ पढ़नी पड़ती है। हमें न्यूज़पेपर नामक चीज़ पढ़नी पड़ती है, हर किसी को इससे डर लगता है। देखो यार, रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ है, वो आपको मैगजीन दे रहे हैं या कुछ भी, या कोई आपके साथ नोट्स शेयर कर रहा है, बट जब तक आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे, आपका एग्ज़ाम में बैठकर सॉल्व करना चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, बिकॉज इतना लेंदी पेपर है। अगर रीडिंग हैबिट डालोगे तभी कुछ सही होगा, ठीक है ना। अब रीडिंग हैबिट तो डालनी है, और रीडिंग हैबिट में भी अब अगर आप कहोगे ठीक है मैं नॉवल पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ, बट वो तो जो तुम्हें पसंद है तुम वो पढ़ रहे हो ना। पेपर में जो तुम्हें पसंद है वो नहीं आएगा, पेपर में कुछ भी आएगा। पेपर में ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी जिसके बारे में तुमने कभी सुना भी नहीं होगा, राइट, है ना। तो हमें रीडिंग हैबिट डालनी है, तो सबसे अच्छी चीज़ यही नहीं कि हम न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाए। रीडिंग हैबिट डालनी है तो मैं न्यूज़पेपर ही क्यों ना पढूं, क्योंकि न्यूज़पेपर इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल। नंबर 1 बेनिफिट,
नंबर 1 बेनिफिट इसका ये है कि मेरी करंट अफेयर्स कवर होती है, करंट अफेयर्स कवर होती है पूरी करंट अफेयर्स नहीं, लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन भी मेरा कवर होता है, लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन भी मेरा कवर होता है, ठीक है। मेरी वोकैबुलरी इम्प्रूव होती है, मेरी रीडिंग स्पीड बढ़ती है, फोकस बढ़ता है, रीडिंग स्पीड प्लस फोकस, ठीक है। और ये रीडिंग स्पीड और फोकस और रीडिंग हैबिट जो है ये मुझे क्यों हेल्प करेगी, अब ये हमें किस चीज़ के लिए हेल्प करेगा, जो ये वाला पार्ट है, चलिए देख लेते हैं किस चीज़ के लिए हेल्प करेगा। रीडिंग स्पीड, हैबिट एंड फोकस, ये हमें किस चीज़ के लिए हेल्प करेगा। दिस इज गोइंग टू हेल्प वाइल वी अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना। तो हम क्या होगा, जब हर रोज ही ऐसी चीजें पढ़ने की आदत पड़ जाएगी तो पेपर में हमें लगेगा कि ठीक है यार पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो। एंड न्यूज़पेपर रीडिंग इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट यार, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, इट इज वेरी इजी। आई हैव डन 2 वीडियोस, आई हैव टोल्ड यू कैसे पढ़ना चाहिए, खुद से तुम पढ़ सकते हो, इट इज वेरी वेरी इजी। इट इज जस्ट दैट वी डू नॉट गिव अ कंप्लीट फोकस टू द न्यूज़पेपर, हम हमेशा उससे डरते ही रहते हैं फालतू में, राइट। और हमारी करंट अफेयर्स, लीगल ऐप, 2 सेक्शंस और कहीं ना कहीं इंग्लिश भी अच्छा हो जाता है हमारा, 2 सेक्शंस हमारे क्लियर कट कवर होते हैं न्यूज़पेपर से यार, 2 सेक्शंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, करंट अफेयर्स, लीगल एप्टीट्यूड, ठीक है। तो न्यूज़पेपर द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस में जो तुम्हें अच्छा लगता है वो पढ़ लो, ठीक है। मुझे पता है तुम्हारा क्वेश्चन क्या आ रहा है कि मेरे एरिया में द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस अवेलेबल नहीं है, तो बच्चों ई न्यूज़पेपर के लिए सब्सक्राइब कर लो, ई न्यूज़पेपर इज द बेस्ट न्यूज़पेपर, राइट। नेक्स्ट इज मेक नोट्स एवरी डे, it is very important to make notes every day। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो प्लीज मेक नोट्स एवरी डे फ्रॉम द न्यूज़पेपर, क्योंकि हमारे 2 सेक्शंस कवर हो रहे हैं। तो अगर हमें स्टार्टिंग में 1 से 2 घंटे भी लगते हैं ना, और स्टार्टिंग में लगेंगे यार, उसके बाद पता है क्या होगा, सेम ही न्यूज़ होती है, तुम कहते हो अच्छा यार ये इशू है इसका अपडेट पढ़ लेती हूँ, मतलब नई न्यूज़ तो कम ही आती है। फिर उसके बाद जब तुम 1 मंथ के लिए न्यूज़ अच्छे से पढ़ लोगे ना, फिर तुम कहोगे क्या है, इट्स सिंपल फाइन, न्यूज़पेपर जल्दी जल्दी से होने लग जाता है। इट इज जस्ट फॉर दोज 30 डेज। एंड अगर अभी मार्च में पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना, मार्च में तुम्हारे पास टाइम है, स्कूल से भी फ्री हो, सब कुछ हो, तो अप्रैल में, जून, जुलाई आगे तक तो बड़ा ही इजी काम लगेगा, आई स्वेयर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। रीड अ मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन एवरी डे, सॉरी इट इज एवरी मंथ, नॉट एवरी डे, एवरी मंथ। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन इसलिए ज़रूरी है कि अगर बाय चांस तुम्हारा न्यूज़पेपर में से कुछ इंपॉर्टेंट मिस हो भी जाता है, ठीक है ना, मिस हो भी गया तुम्हारा इंपॉर्टेंट, तब भी तुम पढ़ लो और तुम्हारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं रहेगी, ठीक है ना। बट जो मेथड्स मैंने अपनी 2 वीडियोस में बताए, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तुम्हारा कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं मिस होगा। बट अगर सेफ साइड मिस हो भी जाता है तो तुम मैगजीन्स लाइक दैट ऑफ प्रतियोगिता दर्पण, न्यूज़ एंड इवेंट्स, जीके टुडे के भी आते हैं, तुम वो लेकर अपना कवर कर सकते हो। बट मंथली साथ साथ चलना है, उसको इकट्ठा नहीं करना, बिकॉज उसके बाद टाइम नहीं मिलता, राइट। लीगल एप्टीट्यूड, देखिए लीगल एप्टीट्यूड थोड़ा समझना पड़ेगा। लीगल एप्टीट्यूड ना, आज से पहले 2020 से पहले क्या होता था 2019 में, कि हम कहते थे यार ये बुक है, इसके ये टॉपिक्स हैं, ये आप पढ़ जाओ, ठीक है ना, ये टॉपिक्स हैं, प्लस प्रैक्टिस कर जाओ क्वेश्चंस, एंड आपका लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन हो गया। और करंट अफेयर्स में से कहते थे कि जो न्यू अमेंडमेंट्स हो रही हैं, जो न्यू लॉज आ रहे हैं वो पढ़ लो, ठीक है, ईजी, ठीक है। अब पैटर्न चेंज हो गया है, तो अब सबसे पहले आपका जो लीगल एप्टीट्यूड है, इसकी कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है। मैं ये नहीं कह सकती कि बच्चा ये बुक पढ़ लो और हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लीगल एप्टीट्यूड जो आपका मेजर है वो कहाँ से कवर होगा, न्यूज़पेपर में से, न्यूज़पेपर में से कवर होगा। जितनी भी लीगल लॉ रिलेटेड लीगल न्यूज़ है वो आपकी न्यूज़पेपर में से कवर होगी, और उसमें से ही क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो न्यूज़पेपर इज द मेन थिंग, ठीक है ना। बट अब ये न्यूज़पेपर पढ़कर भी डायरेक्टली नहीं होता है, क्यों, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हमें न्यूज़पेपर समझ में आना चाहिए। न्यूज़पेपर समझने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस लीगल टर्म्स जो होती हैं वो समझ लो। इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, क्यों,
देखो यार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक तरह से अगर इजी वर्ड्स में बोल लें तो इट इज़ अ रूल बुक। रूल बुक है कि इंडिया कैसे फंक्शन करेगा, सब कुछ लिखा हुआ है। तो अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेंगे तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना इजी हो जाएगा, मैं गारंटी देती हूँ। मैंने खुद चेंज फील किया है जब से मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स बनाया ना। मुझे ऐसे लगने लगे यार, न्यूज़पेपर तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया तो न्यूज़पेपर तो बहुत ईजी हो गया पढ़ना, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई दिमाग में कि ये ऐसे होगा। राइट, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। राइट, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से कवर करो आप, चाहे यूनिवर्सल्स में से कवर कर लो, चाहे एपी भारद्वाज में से कवर कर लो, चाहे विलीज में से कर लो। प्लीज, बुक्स लाइक एम लक्ष्मीकांत, डी बासु, दे आर रियली गुड बुक्स बट दे आर नॉट मेड फॉर यू। वाई आई एम टेलिंग यू दिस, मेरे को इनसे दुश्मनी नहीं है, बिकॉज हमारे पास टाइम कम है और हमें हमें अच्छा यूटिलाइज करना है अपना टाइम। राइट, लीगल टर्म्स के लिए प्लीज़ बैकग्राउंड स्टडी। हम देखते हैं जहाँ पे भी लीगल टर्म्स हमें टॉपिक दिया होता है तो सिर्फ हमें एक दो तीन एक छोटे से सेंटेंस में बता देते हैं इसका मीनिंग क्या है, फिर हमें समझ नहीं आता। तो हमने क्या करना है, 10 to 15 लीगल टर्म्स, 20 लीगल टर्म्स हर रोज़। ये तो आप मार्च अप्रैल स्टार्टिंग में कर सकते हो, ठीक है ना। उठानी है, उनको समझना है, ऑनलाइन जाके डालना है, मतलब समझने की कोशिश करनी है। 2 वीडियोज़ मैंने भी करी हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इससे मुझे याद आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपको लगता है आपके लिए डिफ़िकल्ट है बट फिर भी सेल्फ स्टडी करना है तो आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने खुद सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो ये आपका न्यूज़पेपर पढ़ने में हेल्प करेगा एक तरह से। अगर आप ये करते हो तो यू अंडरस्टैंड द लीगल लैंग्वेज, ठीक है ना। लीगल लैंग्वेज समझने में आपकी हेल्प हो जाएगी। देखो, अब जो लॉज हैं, बेसिक लॉज जैसे टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, ये आपके बेसिक लॉज हैं, ठीक है ना। ये आपके बेसिक लॉज हैं, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, ये आपके बेसिक लॉज हैं, ठीक है। अब देखो, इनमें से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला, इनमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि यार ये बताओ टॉर्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था, क्रिमिनल लॉ में थेफ्ट का क्या मीनिंग है। नहीं, ये सब नहीं आता, ये पहले आता होता था, अब नहीं आता है। बट ये भी आपको ये भी सर्व करेगा, ठीक है ना, आपको समझने में, लीगल लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करेगा। तो हमने इन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बट हमने ये कर कर ख़त्म कर देनी है। समझ रहे हो, ये कर कर फटाफट से ख़त्म कर दें, क्योंकि हमारा मेन एम क्या है कि न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ना है और न्यूज़पेपर पढ़कर अपने नोट्स बनाने, वो हमारा मेन एम है। राइट, उसके बाद तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है प्रैक्टिस। अब क्या है, प्रिंसिपल और फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस, प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस। अब यार देखो, नो डाउट हमें जो इंस्टीट्यूट्स हैं और बुक्स हैं उसके अंदर हमें नए टाइप के क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, बट मेरी मानो तो एटलीस्ट कम से कम 500 क्वेश्चंस अपने इसके सॉल्व करो, प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस। क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाओ, क्लैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाओ और प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो कैसे सॉल्व करने चाहिए उसके ऊपर भी वीडियो किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये प्रैक्टिस कर लिया, मतलब अगर ये तीनों कर लिया ना, प्लस 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 ये, और अगर तुम्हारे पास टाइम कम है, तुम ये नहीं करना चाहते तो रिमूव भी कर सकते हो, बट अगर टाइम है तो कर लो। अगर ये तीनों कर लिया, तुम्हारे पास नॉलेज है, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ा, नॉलेज मिली न्यूज़पेपर में से, ठीक है। नंबर 1 तो न्यूज़पेपर ही है तुम्हारा, नंबर 1 न्यूज़पेपर में से मिला, नंबर 2 तुमने अपनी नॉलेज गेन कर ली, ठीक है। नंबर 3 क्या हुआ, प्रैक्टिस। ये सब का ऐड कर दिया तो तुम्हारा लीगल एप्टीट्यूड हो गया, लीगल एप्टीट्यूड इज डन। आई एम टेलिंग यू दिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, उसके बाद तुम्हारा लीगल एप्टीट्यूड सही चलेगा, क्योंकि तुम्हें प्रिंसिपल और फैक्ट समझ में आ जाएगा कि आप क्लैट की वेबसाइट पर जाओगे, वो खुद बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करो एंड एक्चुअली हेल्प करेगा। मैंने भी ये फील किया है, एक्चुअली हेल्प करता है। राइट, इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके पास एपी भारद्वाज है, विलीज है, उसमें से कर लो। यूनिवर्सल्स में मत करना, यूनिवर्सल में उस हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं हैं, तो विलीज या फिर एपी भारद्वाज में से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। और ये टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ है, इसके लिए भी विलीज और एपी भारद्वाज सही रहेगा। राइट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इसके ऊपर। अल्टीमेटली हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस हमारे न्यूज़पेपर में से ही आएंगे।
राइट, ये बात याद रखनी है। समझ बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश के अंदर अगर हम 2020 का सिलेबस देखते हैं, गाइस मैं भूल गई बताना आपको, मैंने एक सिलेबस पे वीडियो करा हुआ है, प्लीज़ वो वॉच कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसके भी नोट्स ले लेना, आपको बहुत हेल्प करेगी, प्रॉमिस, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच्ची में। तो इंग्लिश के अंदर आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से सबको डर भी लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि हमें पता नहीं कि कैसे, हाउ टू सॉल्व, हमें ये नहीं पता हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। तो मैंने इसके ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो करी हुई है, मैंने उसमें बुक्स भी डिस्कस करे हुए हैं, कैसे प्रैक्टिस करना है, सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नहीं मिलेगा तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन लॉगिरी टाइप कर देना यूट्यूब पर जाकर, तुम्हें वीडियो मिल जाएगी। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तुम्हारा हो जाएगा। ये बहुत ईजी है, ईजी मार्क्स हैं ये आपके, ईजी मार्क्स हैं ये आपके। फिगर्स ऑफ स्पीच देखिए 2020 के पेपर में, 2020 के पेपर में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन टाइप के क्वेश्चंस थे, प्लस फिगर्स ऑफ स्पीच था, सिमिली, मेटाफर, ये होते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। बहुत इजीली ऑनलाइन इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है फिगर्स ऑफ स्पीच पे, ये टॉपिक आपका बहुत इजीली कवर हो सकता है। उसके बाद आती है ग्रामर की। देखो ग्रामर 2020 में नहीं आई थी, 2020 में ग्रामर नहीं आई थी, बट अगर हम उनका सिलेबस उठा के देखते हैं, हम उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं, सॉरी सैम्पल पेपर्स उठा के देखते हैं 2020 की, या फिर जो उनकी गाइडलाइंस है सिलेबस से रिलेटेड वो उठा के देखते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं उन्होंने बोला हुआ है कि ग्रामर भी कर कर आओ, ठीक है ना। तो हम बेसिक टॉपिक्स अपने ग्रामर के कर लेंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले मैं अपनी ग्रिप किस पे बनाऊंगी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और फिगर्स ऑफ स्पीच पे। ये नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बुक जो है वो आपको वो वीडियो में मिल जाएगी। ग्रामर की बुक जो है आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस है। देखिए बच्चे, रेन एंड मार्टिन, अगर आपको रेन एंड मार्टिन आपने पहले स्कूल में पढ़ी हुई है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप रेन एंड मार्टिन के लिए जा सकते हो, बट ये बुक थोड़ी सी ज़्यादा लेंदी है, समझ में नहीं आता, बच्चे डर जाते हैं इसको देख के। तो आप SP बख्शी के लिए जा सकते हैं, बाय अरिहंत, या फिर एनी अदर बुक, और एनी अदर बुक जो इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, और उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं, टेंसेस, आर्टिकल्स, prepositions, active and passive voice models, subject verb agreement is very important, right, then spotting grammatical errors in sentences, right। अब दोबारा बोल रही हूँ, 2020 में ग्रामर के क्वेश्चंस नहीं आए थे, बट ये हमारा सेफ साइड के लिए हो गया, तो ये हम बाद में करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करते हैं मैथ्स की। देखो बच्चे, मैथ्स आपका दो में डिवाइड हो गया, एक तो जनरल मैथ्स कह देते हैं इसको, ठीक है, जो 10th तक का मैथ्स है आपका। उसके बाद आपका DI, दैट इज डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। मैथ्स के लिए आप सॉल्व कर लो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, स्टैटिस्टिक्स 10th NCERT की बुक में से सॉल्व कर लो, बेसिक अलजेब्रा, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैथ्स आप कहाँ से कवर करोगे, देखो यार, मैथ्स के लिए 18 डेज वंडर बाय एस चंद मैं सजेस्ट करती हूँ। 18 डेज वंडर बाय एस चंद, जो तो टॉपिक सारे आपके उसमें से कवर हो रहे हैं वो कर लो, प्लस NCERT। अब देखो बहुत बच्चे NCERT का सोचते हैं कि हमने पूरी NCERT सॉल्व करनी है, पूरी NCERT सॉल्व नहीं करनी है, आप स्टैटिस्टिक्स और सर्कल्स NCERT में से सॉल्व कर सकते हो, वो भी आपको ऑनलाइन PDF अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करके सॉल्व कर लो। तो आप क्या कर सकते हो, एक ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ लिख देती हूँ मैं, कंफ्यूज ना हो आप। फर्स्ट ऑप्शन इज 18 डेज वंडर बाय एस चंद, प्लस आप NCERT कर लो, ठीक है ना, पर्टिकुलर टॉपिक्स, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक है RS अग्रवाल की, क्या हमें वो यूज़ करनी चाहिए? आप वो यूज़ कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर टॉपिक्स ही सॉल्व करने हैं, पर्टिकुलर टॉपिक्स, सिर्फ ये पर्टिकुलर टॉपिक, सारी की सारी बुक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और आपके बेसिक्स जो एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इवन प्रॉफिट एंड लॉस भी सॉल्व करो, बिकॉज जो ये बेसिक्स हैं यही डाटा इंटरप्रिटेशन के सम्स पे यूज़ होते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं उस पर अब उस पर आप यही फॉर्मूलाज यूज़ करते हो। तो अगर 18 डेज वंडर है, उसका 18 डेज वंडर का मैं ऐसे करूँगी कि फ़ोटो क्लिक कर कर मैं एक PDF फॉर्म में डाल दूंगी कि आपको उसका इंडेक्स मिल जाए और आपको पता चल जाए कौन से टॉपिक्स हैं जो जनरल मैथ्स के बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। ये तो इशू हमारा सॉल्व हो गया, बट हमने एक फॉर्मूला लिस्ट भी क्रिएट करनी है। फॉर्मूला लिस्ट मतलब सारे फॉर्मूलाज, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट का, प्रॉफिट एंड लॉस का क्या है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में इतने फॉर्मूलाज होते हैं, स्टैटिस्टिक्स में इतने फॉर्मूलाज होते हैं, ये लिस्ट क्रिएट करनी है और बार बार रिवाइज करनी है, राइट। बात करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन की। डाटा इंटरप्रिटेशन 2020 में तो बहुत ही बेसिक आया था, बेसिक आया था। सिर्फ आपको ये आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन में से डाटा कलेक्ट करना है, और फिर क्वेश्चंस आपके नॉर्मल वो मैथ्स वाली हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल ही बेसिक डाटा इंटरप्रिटेशन करना है।
या तो आप बाय कर लो, या तो आप ऑनलाइन रिसोर्सेज से, जो बैंकिंग के रिसोर्सेज होते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए, आप उसमें से पढ़ सकते हो, या फिर जो एक पर्टिकुलर बुक है, आई थिंक वो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की बुक है जो अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पक्का से दे दूंगी, आप वहाँ से करोगे। बट अगेन वो इंटायर बुक नहीं सॉल्व करनी, इंटायर बुक नहीं सॉल्व करनी, आपने सिर्फ बेसिक सॉल्व करना है, बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। जो इन डेप्थ वाले क्वेश्चन है वो नहीं सॉल्व करने। अब बेसिक कौन से हैं और दूसरे कौन से हैं वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और सैम्पल पेपर्स में देखो कि बिल्कुल बिल्कुल बेसिक आया हुआ है, राइट। करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। हमें पता है कि जो रीजनिंग का सेक्शन है, जो रीजनिंग का सेक्शन है वो हम किस में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो लॉजिकल, ठीक है ना, और एक क्रिटिकल। क्रिटिकल रीजनिंग मतलब आपका अजम्पशंस वाले क्वेश्चन टाइप्स, ठीक है ना। अब याद देखो, लॉजिकल रीजनिंग का मेजर पार्ट आपका नहीं आया था 2020 के एग्जाम में, मतलब आया ही नहीं था लॉजिकल रीजनिंग, बट ये हम सैम्पल पेपर्स में से और जो उनकी गाइडलाइंस है उसमें से निकाल रहे हैं। सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, राइट, ये सारे आप सेफ साइड के लिए कर जाओ। अब एनालॉजी में बार बार बोलती हूँ कि आपका बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो और यू आर डन। बुक आपकी वही रहती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल, पूरा ही लिख देती हूँ, ठीक है ना। ये बुक आपने बाय करनी है और यही टॉपिक सॉल्व करने हैं। बात करते हैं क्रिटिकल रीजनिंग की। देखिए क्रिटिकल रीजनिंग भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो क्रिटिकल रीजनिंग में द बेसिक ऑफ लॉजिक, assumptions, forcefulness of arguments, inferences, premises and conclusions, strengthening and weakening of arguments, syllogisms, premises and conclusion, cause and effect, courses of action, जो अंडरलाइंड और बोल्ड में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इसके लिए बुक आपकी वही रहती है। एक तो आप एम के पांडे ले सकते हैं, देखिए एम के पांडे में से कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की और क्वेश्चंस भी सॉल्व करें, और फिर आप बाय कर सकते हैं। देखिए पर्टिकुलरली क्लैट की क्रिटिकल रीजनिंग की हमारे पास कोई बुक अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो नॉर्मली आप विलीज की बुक बाय कर सकते हैं। इसका नाम है जी मैट क्रिटिकल रीजनिंग ग्रेड, जी मैट की बुक आती है या MBA के लिए बुक्स आती हैं, आप वो बाय कर सकते हैं, राइट। बट सबसे पहले कॉन्सेप्ट एम के पांडे में से, और अगर मेरे पास जो बुक है वो यही है, विलीज की जी मैट क्रिटिकल रीजनिंग ग्रेल नाम की बुक है, उसमें भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ा अच्छा है और क्वेश्चन टाइप्स वही हैं जो क्लैट पे आते हैं, मतलब थोड़े थोड़े मैच करते हैं, ओके। ये वीडियो देखने के साथ साथ ही स्टेप 1 कर लेते हैं, वो है डिसाइडिंग द ऑर्डर ऑफ टॉपिक्स। देखो यार हमारे पास टाइम जो है वो मिनिमल है, ठीक है ना, मिनिमल टाइम है, ठीक है ना, और हमें इसे अच्छे से यूटिलाइज करना है, गुड यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, राइट। और गुड यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम क्या होती है कि हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पहले कर ले, या जो टॉपिक्स हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने में हेल्प करते हैं हम उनको कर लें पहले, राइट। नंबर 1 इज़ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैंने वीडियो ऑलरेडी करा हुआ है, प्लीज़ डू चेक आउट दैट वीडियो, ठीक है। उसके अंदर बेसिकली हमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इसलिए डिफिकल्ट लगता है क्योंकि हमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना था, जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो हमें सॉल्व करने नहीं आते। अब कि मेन आइडिया क्या है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, राइट। अब मैथ्स के अंदर भी हम क्या करते हैं, मैथ्स हम समझ लेते हैं ना कि ओके ये टाइप का जो क्वेश्चन है ये ऐसे सॉल्व होगा और हमें समझ में आ जाता है, राइट। वैसे ही में अगर हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का जो फॉर्मूलाज हैं, ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं वो समझ लाएंगे, वो हम अपने अडॉप्ट कर लेंगे, तो हमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ईजी लगने लग जाएगा। नेक्स्ट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें न्यूज़पेपर पढ़ने में मदद करता है। न्यूज़पेपर के बेनिफिट्स मैं बार बार नहीं बताऊंगी, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लीगल टर्म्स भी, एंड जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना वहाँ पे कोई टर्म पता तो चल जाता है ना कि लीगल टर्म है, कोई लॉ से रिलेटेड टर्म है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, तो उसका मीनिंग ढूंढो, उसका मीनिंग ढूंढो। गाइज अगर तुमने 15 to 30 डेज अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ लिया ना, उसके बाद तुम्हें मज़ा आने लग जाएगा क्योंकि रिपीटेड न्यूज़ होती है यार बहुत बहुत। तो अब उसके बाद टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, क्योंकि अगेन हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कवर करने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें से कम ही आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लीगल एप्टीट्यूड के लिए, तो ये सारा हमारा लीगल एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स कवर हो गया। इंग्लिश का मेजर पार्ट हमारा यहाँ पे कवर हो गया, देख रहे हो 3 सब्जेक्ट्स कवर हो गए तुम्हारे। उसके बाद मैथ्स एंड DI देखना, एंड उसके बाद अब बाद लॉजिकल, क्रिटिकल, ग्रामर के टॉपिक्स,
ठीक है ना। अब तुम्हें ये मंथ वाइज डिवाइड करने हैं, देखो मंथ वाइज डिवाइड करने हैं। अगर तुम्हारे मार्च में कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, 11th क्लास के एग्ज़ाम्स हो गए हैं, तो प्लीज़ गाइज ये वाला पार्ट करके ख़त्म कर दो। ये वाला पार्ट, अगर ये वाला नहीं हो सकता, मेन एम ये वाला पार्ट, क्योंकि न्यूज़पेपर ये वाला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्लीज़ गाइज प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। मैंने आपको बुक्स ऑलरेडी बता दी हैं, वीडियो ध्यान से सुनोगे तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ये वाला पार्ट जो है हमने अप्रैल एंड तक, ज़्यादा से ज़्यादा मई मिड तक ख़त्म कर देना है, ठीक है। जब जून जुलाई की छुट्टियां होंगी उसमें हमने ये सब कुछ ख़त्म कर देना है। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है यार, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। देखो ये वाली चीज़ें, ये जो तुम्हारे टॉपिक्स हैं ना, ये सारे टॉपिक्स जो मैं बात कर रही हूँ, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो तुम पहले से करके रख सकते हो, ये सब कुछ करके रख सकते हो। रीडिंग न्यूज़पेपर हर रोज़ का काम है। एवरी डे यू नीड टू रीड द न्यूज़पेपर एंड मेक नोट्स। एवरी डे यू हैव टू डू इट, ठीक है ना। वो जो जैन फेब मार्च वाला बनाया था, जब जैन फेब मार्च 2022 चल रहा होगा, बोर्ड्स का प्रेशर होगा, तब भी तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। मिस नहीं कर सकते तुम न्यूज़पेपर, समझ रहे हो। बट ये सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम पहले कर लोगे। नहीं तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, ऐसे टेंशन फ्री मस्ती वाली ज़िंदगी जियोगे, राइट। नहीं तो टेंशन वाली ज़िंदगी कैसे होगा। अभी तो तुम कंफर्ट में जी रहे हो, कंफर्ट में जियोगे एंड प्रिपरेशन करोगे। स्टेप 2, टाइम मैनेजमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो वर्किंग है, स्कूल जाना है या स्कूल ऑनलाइन अटेंड करना है, जो भी है, ठीक है। 2 to 4 आवर्स तुम्हें हर रोज़ देने ही देने हैं, 2 to 4 आवर्स। अगर तुम्हें क्लैट क्लियर करना है तो प्लीज़ गाइज ट्राई करो कि तुम किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करो। बहुत बच्चे आते हैं जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, फिर क्लैट की भी कर रहे हैं। इससे अच्छा तुम एक की चूज वन, या तो जेई की तैयारी कर लो या क्लैट की कर लो। मतलब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे फोकस करो। 2 to 4 आवर्स, ठीक है। और हर रोज़ क्या करना है, न्यूज़पेपर हर रोज़ पढ़ना है, उसके नोट्स बनाने हैं और 1 और 2 सब्जेक्ट्स करने हैं। बहुत बच्चे पूछते हैं कि दी हमें हर रोज़ सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना पॉसिबल है 15 मिनट्स पढ़ोगे, इतना तो फोकस ही नहीं आ पाएगा। तो 1 और 2 सब्जेक्ट्स एक्सचेंज में। बट जिस दिन हॉलीडे है उस दिन ट्राई करोगे कि 6 to 8 आवर्स, 6 to 8 आवर्स, क्योंकि उस दिन रिवाइज भी करना है। उस दिन क्या क्या करना है, न्यूज़पेपर और नोट्स तो सेम ही रहेगा, बट रिवाइज भी करना है, 1 और 2 सब्जेक्ट्स भी करने हैं, न्यू टॉपिक्स भी करना है, रिवाइज भी करना है, न्यूज़पेपर भी पढ़ना है। और न्यूज़पेपर कभी भी कलेक्ट नहीं करना है। अगर न्यूज़पेपर तुम्हारे 2 एक साथ हो गए ना, गई स्टोरी खत्म। क्वेश्चन जो पूछते हैं, शुड बी स्टडी ऑल सब्जेक्ट्स एवरी डे, नो, रोटेशन। तभी तो प्लानिंग करना है ना कि इस महीने तक ये वाले टॉपिक्स मेरे खत्म हो गए। और सब्जेक्ट्स की तो बात ही नहीं कर रहे, हमने टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट। अब टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो, प्लान हाउ विल यू कवर द सिलेबस। मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो करी हुई है, उससे ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो टाइम टेबल पे नहीं हो सकती। प्लीज़ वो वीडियो देख लेना और अपना टाइम टेबल क्रिएट कर लेना। मुझे पता है बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, बट मेक अ लिस्ट ऑफ द सिलेबस, हैंड रिटन लिस्ट होनी चाहिए। मैं भी लिखकर सिलेबस इस वीडियो के बाद अपलोड कर दूंगी, वो PDF ले लेना, ठीक है। डिसाइड द बुक्स फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू स्टडी, प्लीज़ गाइस करेक्ट बुक्स ऑप्ट करना, ठीक है, जो मैंने डिस्कस करी हैं। राइट डाउन द टॉपिक, पेज नंबर, डे एंड डेट व्हेन यू आर गोइंग टू कवर द सिलेबस, कवर द पर्टिकुलर टॉपिक, नॉट द सिलेबस। पर्टिकुलर टॉपिक, कौन सा टॉपिक करोगे, कौन सी बुक में से करोगे, कौन से पेज नंबर्स। एंड वर्केबल शेड्यूल बनाना है, वर्केबल शेड्यूल, ठीक है। एक टॉपिक है 50 पेजेस का, अब एक टॉपिक है 50 पेजेस का, मेरे पास टाइम 2 आवर्स है, क्या मैं वो कर सकती हूँ? नहीं यार, नहीं कर सकती। तो मुझे डिवाइड करना है, मान लो 10 पेजेस के डिवाइड करूंगी मैं कि 1 वीक के अंदर ये टॉपिक हो जाएगा, तो वो मुझे लिखना है, राइट। और अगर बुक साथ लेके बैठोगे तभी पता रहेगा ना कौन सा टॉपिक कितना बड़ा है या कितना मुश्किल है। क्रिएट अ नॉट टू डू लिस्ट, क्रिएट अ नॉट टू डू लिस्ट, अपने दिमाग में सेट कर लो। फ़ोन के साथ पढ़ाई नहीं करनी है, टीवी के आगे बैठकर, लैपटॉप के आगे बैठकर पढ़ाई नहीं करनी है। ट्राई कि जो जो भी आप कंप्यूटर से पढ़ना चाहते हो, या अगर तो वो वीडियो फॉर्मेट में उसको देखो, बट फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब कुछ नहीं करना है। और ट्राई कि आप इन डिवाइसेस से दूर रहो, ठीक है ना। जो वो पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं, पॉलिटिक्स होती है, लड़ाई झगड़ा, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, प्लीज़ सबको भूल जाओ 1 साल के लिए। अब
टिप, प्लान बिफोर यू स्लीप. इवन आई प्लान बिफोर आई स्लीप. और जब से मैंने ये करना स्टार्ट किया, माई लाइफ हैज़ चेंज्ड. बिकॉज मुझे पता होता है सुबह मुझे क्या करना है, मुझे ये केस पढ़ना है, ये वीडियो करनी है, मुझे पता होता है, ठीक है ना. तो सोने से पहले प्लान करके सो. प्लान बिफोर द वीक बिगिंस, ये भी बहुत ही हेल्पफुल है कि वीक के प्लान बना लो. क्या होता है, अब जब से मैंने वीक प्लान करना स्टार्ट किया है ना, क्या होता है, चलो मंडे को मैंने सोचा था ये हो जाना चाहिए, बट मंडे को मम्मा आ गई कि बेटा ये कर दो. तो मम्मा को भी मना नहीं कर सकते, बट तुम लोग मना कर सकते हो. यू कैन टेल योर मदर वेरी पोलाइटली, योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, दैट आई हैव टू स्टडी, प्लीज लीव मी अलोन, right? But when you are an adult, you cannot, you have to do the work of everybody. So what I do, ठीक है, मंडे को ये काम कर दिया, then the week, then my what I have to achieve in the week is there. So I, whenever I get time, I do it. मतलब मैं वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे का भी कभी कभी ट्यूसडे को ख़त्म कर देती हूँ अगर मेरे पास टाइम होता है, बिकॉज आई नो कभी भी कुछ भी आ सकता है, कोई नया केस आ गया, वो मुझे फाइल करना है, तो सब कुछ छोड़ के मुझे वो करना पड़ेगा. तो वीक प्लान करो और डे भी प्लान करो, दोनों. तुम लोग तो डे प्लान कर सकते हो यार, मतलब पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं 11th-12th में, लाइफ और पेरेंट्स और फैमिली सब साथ देते हैं, ठीक है. तो ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना. एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो. एंड आप चाहो तो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे. कमेंट्स में अगर पूछोगे कुछ तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई. या दैट्स इट, साइनिंग ऑफ. चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए. और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ. वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ. तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके. वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय.